اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام، طلباء کرام، جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کے آج کی اس افتتاحی تقریب میں حاضر ہوئے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے کہ اس مالک کریم نے افضل ترین مخلوق میں ہمیں پیدا فرمایا۔ سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ کریم کی ذات نے جو سب سے بڑا کرم فرمایا، جو فضل فرمایا، وہ کرم، وہ فضل یہ فرمایا، ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی اور غلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنی بھی بندہ مومن کو نعمتیں عطا فرمائیں، ساری کی ساری نعمتیں آقا کریم علیہ السلام کے صدقہ پاک سے ہمیں عطا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت ہم اس محفل پاک میں حاضر ہیں، نہ جانے کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے بزرگ گناہوں بری محفلوں میں مصروف ہوں گے، مگر یہ خالق کریم کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اور پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس زاویہ الطریقۃ المحمدیہ کے اندر دنیا اسلام کی عالمی تنظیم دعوت اسلامی جو اس وقت 200 سے زائد ممالک میں دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے، دعوت اسلامی کا عظیم الشان ادارہ مدرسۃ المدینہ الحمدللہ عز و جل حضرت صاحب کی کوششوں سے اس زاویہ کے اندر اس کا جو انعقاد ہو چکا ہے۔ تو چند ایک مختصر سی باتیں جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے عرض کرنے کے بعد مختصر سا تعارف کرواتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے دین کا علم سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اپنے گھروں سے چل کے اس محفل پاک میں آئے، یہ نیت لے کے بیٹھیں، جو کچھ بیان کیا جائے گا اس کو سنیں گے، سننے کے بعد خود بھی عمل کریں گے، جہاں تک ہماری رسائی ہوگی آقا کریم علیہ السلام کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے نا تو بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ساری کی ساری کامیابی تو مجھے مل گئی ہے، باقی سارے بندے ناکام ہیں۔ اگر کوئی انجینئر بن جائے وہ کہتا ہے ساری کامیابی میں حاصل کر چکا ہوں، باقی جتنے بندے ہیں وہ ناکامی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ مگر آئیں اللہ کریم کی لاریب کتاب سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام پاک ہماری رہنمائی فرما، اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ جب اللہ کریم کے کلام سے سوال کیا، رب کے کلام نے جواب دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماتا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ فلاح کو پا گیا، اس بندے کو کامیابیاں مل گئیں۔ اللہ فرماتا ہے من تزکا، جو اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، جو اپنے باطن کی صفائی کر لیتا ہے، اللہ اسے دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔
आगे फरमाया वज़कर अस्मा रब्बिही, अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरे नाम का जिक्र करता है ना, हम उसको भी कामयाबियां अता फरमाते हैं। अल मुख्तसर, तीसरी निशानी जो बयान की, फसल्ला, अल्लाह फरमाता है जो बंदा 5 वक्त मेरी बारगाह में नमाज को कायम करे, अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ने वाला भी दीन और दुनिया की कामयाबियां हासिल कर लेता है। आज हम दुनियादारी के कामों के अंदर अपनी जिंदगियों का सुकून तलाश करते हैं, लेकिन ये सुकून हमें किधर से मिलेगा? अल्लाह करीम के दरबार में झुकने से मिलेगा, कुरान करीम की तिलावत करने से मिलेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बेशुमार हदीस सिहा सित्ता के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी हजरत सैयदुना अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते, एक दिन मैंने इरादा किया कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाऊं और अपने लिए कुछ नसीहतों को हासिल करूं। कहते हैं मैं इरादा लेके दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसीनी, आका कोई वसीयत ही फरमा दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू जर अलैका बितक़वल्लाह, ए अबू जर तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा कहते हैं गुनाहों को छोड़ के नेकी वाले काम करना। अब तकवा क्यों इख्तियार करो? हजूर फरमाते हैं इसकी वजह यह है फ़इन्नहु यअमुरु रअसुल अम्रि कुल्लिही, कि तकवा जो है ना तमाम तर नेकी के कामों की जड़ और बुनियाद होता है। अब पता चल गया, दोबारा अर्ज करते हैं जिदनी, आका कोई और वसीयत फरमाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैका बितलावतिल कुरान, ए अबू जर तुम कसरत से कुरान करीम की तिलावत किया करो, इसलिए कि फ़इन्नहु नूरुल लका फिल अर्दी व ज़ुख़रुल लका फिस समा, ये तिलावत कुरान करीम करना दुनिया में तुम्हारे लिए रब का नूर और कयामत के दिन तुम्हारे लिए नेकियों का जखीरा बन जाएगा। हम अपने ऊपर गौर करें, हम तिलावत कुरान कितनी करते हैं, कुरान करीम से हमारा प्यार कितना है। अगर असलाफ की जिंदगियों को देखें तो वो लोग तो अपनी जिंदगी का एक एक पल आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत के लिए वक्फ किया करते थे। एक किताब है जिस किताब का नाम है अल मुनब्बहात, इस किताब के अंदर बड़ा एक प्यारा वाकया लिखा है, हम सब की नसीहत वाला, बहुत मशहूर वली कामिल कुरून औला से जिनका ताल्लुक है, हजरत सैयदुना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अक्सर लोगों ने आपने नाम सुना हो इमाम हसन बसरी का। अल्लाह ने बड़ी शानें आपको अता फरमाई, रब ने बड़े कमाल आपको अता फरमाए। आपने एक दिन अपनी जिंदगी का एक अनोखा वाकया बयान किया। आप फरमाते एक दिन मैं बसरा के बाजार से गुजर रहा था। फरमाते हैं बसरा के बाजार के अंदर ना एक इबादत गुजार नौजवान मुझे मिला, वो भी मेरे साथ सफर उसने शुरू कर दिया। फरमाते हैं बाजार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दुकानें होती हैं। कहते एक ऐसी दुकान थी जो एक हकीम साहब की दुकान थी, उसके बाहर औरतें भी खड़ी थी, बच्चे भी खड़े थे, जवान भी खड़े थे, बूढ़े भी खड़े थे, जिनके हाथों में शीशियां थी और वो अपनी अपनी बारी से उस हकीम साहब से अपना मसला बयान करते, अपना मर्ज उनके सामने पेश करते। वो हकीम साहब उस मर्ज की दवा उन लोगों को देते। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि वो नौजवान मुझे कहता है थोड़ी देर रुक जाएं, मुझे भी बीमारी है, मैं हकीम साहब से दवाई लेना चाहता हूं। फरमाते हैं जब सारे बंदे चले गए ना, आखिर में हम रह गए, तो फरमाते हैं कि वो नौजवान हकीम साहब की खिदमत में गया। कहते हैं हकीम साहब क्या आपके पास गुनाहों से बचने का भी इलाज है? क्या आप गुनाहों से बचने की भी कोई दवाई देते हैं? तो हकीम साहब जो थे ना वो मारिफत वाले थे, अल्लाह वाले थे, रब ने उन्हें बड़ी शानें अता फरमाई थी। उन्होंने फरमाया कि हाँ ऐ बेटे गुनाहों से बचने का इलाज भी मेरे पास है। अब ये नौजवान कहता है हकीम साहब फिर बताएं कौन सा इलाज है? आपने अक्सर देखा होगा जो हकीम की दुकान होती है ना, बाजुकात हकीम साहब अपनी दुकान से दवाई दे देते हैं और बाजुकात नुस्खा लिखते हैं कि ये नुस्खा तुम पंसार स्टोर से लेके अपने घर में तरीका कार के मुताबिक तैयार करके इस्तेमाल करो, अल्लाह तुम्हारा मर्ज दूर फरमा देगा। हकीम साहब ने कहा बेटा जो तुम्हारा बीमारी का नुस्खा है ना, तुम्हें गुनाहों की बीमारी है, आओ मैं तुम्हें इलाज बताता हूं, अपने घर में जाके वो इलाज करो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों की बीमारी से शिफा नसीब फरमाएगा। अब हकीम साहब का नुस्खा समाअत फरमाए। हकीम साहब ने कहा क्या बेटे
काला खुज मारूका शजरतिल फकरी मारूकी शजरतित तवादु। अब बेटे सबसे पहले ऐसे करो, फकर और अफलास की जड़ की जो है ना दरख्त की जड़ें काटो, आजजी की जड़ें काट के लाओ। फिर क्या करो, वजअल फीहा हलील तौबा, उसके अंदर तौबा की दवा को भी मिक्स कर दो। फिर क्या करो, आपने फरमाया वतरकु फीहा रदा, फिर रब्बे करीम की रजा की खरल के अंदर उस दवाई को डालो। खरल का जो मतलब उर्दू लुगात के अंदर लिखा गया है ना, वो ये है कि पत्थर का जो बर्तन होता है ना जिसके अंदर दवाइयों को पीसा जाता है। हकीम साहब ने फरमाया पहले तुम्हारे अंदर आजिज़ी आनी चाहिए, आजिज़ी के दरख्त की जड़ें काटो। फिर क्या करो, उनके अंदर तौबा को शामिल करो। फिर क्या करो, फरमाया रब्बे करीम की रजा के बर्तन में उस दवाई को डाल लो। फिर वसहक़ु बिमिंजारिल कनाआ, कनाअत के हामन दस्ते से उस दवाई को पीसो। जब वो दवाई बिल्कुल जर्रा जर्रा बारीक हो जाए, फिर क्या करना है, हकीम साहब फरमाते हैं बेटे वजअलहु फी कदरि तुका, फिर उस दवाई को तकवे की हांडी के अंदर डाल लेना है। फिर उस दवाई को तकवे की देग के अंदर डालना है। जब तकवे की देग में वो दवाई चली जाएगी, फिर तुमने क्या करना है, वसब्ब अलैहिल मा, उसके अंदर फिर शर्मो हया का पानी मिक्स कर देना है। जब शर्मो हया का पानी भी डाल लेना, फिर क्या करना है, फरमाया बेटे वह अगली ही बिनारिल महब्बा, मोहब्बत इलाकी की आग पर उस दवाई को रख देना है। मोहब्बत इलाकी की आग पर उस दवाई को जोश देना है। फिर क्या करना है, वजअलहु फी कदरि शुक्री, फिर शुक्र के प्याले में उस दवाई को डाल लेना है। अब दवा तैयार होगी, शुक्र के प्याले में आ गई। अब क्या करना है, हकीम साहब ने फरमाया अब वरौहु बिमिरवहतिर रिजा, अल्लाह करीम की उम्मीद के पंखे से दवा को ठंडा करना है। जब दवा ठंडी हो जाए, फिर क्या करना है, फरमाया वजअलहु बिमिलइकतिल हमदी वस्सना, फिर हमदो सना के प्याले से दवाई को पी जाना है। जब तुम ये 10 चीजों का नुस्खा तैयार करोगे, इस नुस्खे के मुताबिक अपनी बीमारी का इलाज करोगे, अल्लाह तुम्हारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। तेरी अज़मतों से हूं बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है, ये खता है मेरी खता मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता मैं तुझसे मिलूं कहां, मुझे तुझसे मिलना जरूर है, कहीं दिल की शर्त ना डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है, तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहीम है तो गफूर है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों की बीमारी से शिफा नसीब फरमाए। अल मुख्तसर, अगर हम चाहते हैं हम दीनदार बने, हमें कुरान करीम की तालीमात का पाबंद बनना पड़ेगा। अगर आज हमारी आने वाली नस्लें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का काम करना चाहे, अगर हर बाप के दिल की तमन्ना है मेरा बेटा कारी कुरान बन जाए, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, मेरा बेटा आलिम दीन बन के आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन का काम करे, तो उससे क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चे को दीनी मदरसे में दाखिल करवाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतिमाम आपके इस जाविया तरीकतुल मुहम्मदिया के अंदर दावत इस्लामी का मदरसातुल मदीना 1 अप्रैल से कायम हो चुका है। और हमने क्या किया कि हमारा मदरसातुल मदीना मंडीर, वहां से जितने आपके इस गांव के या चाड़ा वाला हकीका के तलबा थे, उनको हमने अपने उस्ताद मोहतरम के साथ यहां पर शिफ्ट किया। वो 15 बच्चे थे, लेकिन आज यहां पर जो हमारे कारी साहब पढ़ा रखे हैं, कारी असद तारी साहब, वो फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अभी 8-10 दिन हुए हैं, आज इस मदरसातुल मदीना हकीका के अंदर बच्चों की जो तादाद है वो 25 के करीब हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी है, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का फैज़ है कि दावत इस्लामी 1981 के अंदर इसने अपना काम शुरू किया। आज 35-40 साल के अरसे में 200 से ज़ायद ममालिक पर मेरे शेख तरीकत दीन का पैगाम पहुंचा चुके हैं। 100 से ज़ायद शोबा जात में दावत इस्लामी दीन इस्लाम का फी सबीलिल्लाह काम कर रही है। हमारा शोबा मदरसातुल मदीना, आपको ये जान के खुशी होगी इस वक्त पाकिस्तान और बैरून मुल्क में सिर्फ जो दावत इस्लामी के तहत हिफ्ज़ो नाज़रा के मदरसे हैं उनकी तादाद 4000 से ज़ायद है, और उनमें पढ़ने वाले तलबा कराम तालिबात उनकी जो तादाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज़ायद है।
2 लाख से जायद ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो दावत इस्लामी के मदारस के अंदर हिफ्ज़ व नाज़रा की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जामियातुल मदीना हमारा शोबा है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हिफ्ज़ करने के बाद हम उनको जामियातुल मदीना में भेजते हैं, जहां पर इनको आलिम कोर्स करवाया जाता है। उसके बाद तखस्सुस फिल फिक़्ह का कोर्स करवाया जाता है। 100 से ज्यादा शोबा जात में आपकी और हमारी दावत इस्लामी इस वक्त दीन का काम कर रही है। इस वक्त 3 मदनी चैनल दावत इस्लामी के चल रहे हैं, एक उर्दू जबान के अंदर, एक इंग्लिश जबान के अंदर और एक बंगाली जबान के अंदर। और हमारे मदनी मरकज की तरफ से यह फैसला हुआ है कि इस साल के अंदर 2 और मदनी चैनल का आगाज होने जा रहा है। एक जो होगा वो 24 घंटे उसमें अरबी नशरियात होंगी, एक वो होगा जो किसी और जबान के अंदर, चाइना जबान के अंदर का पता चला है। तो ये सारे का सारा फैज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं बिल यकीन आपके सामने ये खड़ा होकर कहता हूं कि मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया का ये फैज है कि हजरत साहब जैसे नेक लोगों से हमें मिलने का फायदा हो रहा है, हमें सोबत पाक इनकी मुयस्सर आ रही है। मैं आप सब लोगों को दावत देता हूं, अल्लाह वालों की महफिलों में आने से बंदा खाली नहीं जाता, अल्लाह वालों की महफिलों में आने से बंदे के दिल की सफाई होती है। कितनी मशहूर मिसाल शेख सादी की है। आप फरमाते हैं मैं हम्माम में गया तो वहां पर जो हम्माम में जो मिट्टी थी ना जमीन की, उसमें से गुलाब के फूलों की महक आ रही थी, गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। फरमाते मैंने आलम तखय्युल में पूछा, ए मिट्टी तेरे अंदर खुशबू कैसे आ गई? मिट्टी कहती है कि ऐ शेख सादी शराजी, थोड़ी देर पहले एक बंदा इस हम्माम के अंदर ऐसा आया जिसके पास गुलाब के ताजा फूल थे, थोड़ी देर में गुलाब के फूलों की सोहबत में रही, अल्लाह ने मुझे भी खुशबूदार बना दिया है। शेख सादी ये मिसाल देके हम जैसे गाफी लोगों को ये मसला समझा रखे हैं, अगर मिट्टी फूलों की सोहबत में रहकर खुशबूदार बन सकती है तो अगर एक गुनाहगार बंदा किसी वली कामिल के लड़ लग जाए, अल्लाह करीम उससे भी दीन की इज्जतें अता फरमा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल चंद माह कबल हजरत साहब फजीलतुल शेख हजरत अहमद दबाग शाज़ली कादरी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे घर भी तशरीफ लेके गए थे। हमारे मदरसतुल मदीना में 2-3 मरतबा हाजिर हुए। जब पिछली मरतबा आए तो इन्होंने इस बात का इजहार फरमाया कि मैं समंदरी में गया, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी मस्जिद है, वहां पर हमने दावत इस्लामी के जो वहां के जिम्मेदारान थे उनके जरिए हमने वहां पर मदरसतुल मदीना शुरू की है। पहले हमारा निजाम होता था कि जहां पर भी हमारे इदारे शुरू होते थे वो जगह जो है वो दावत इस्लामी के नाम पे रजिस्टर होती थी, लेकिन मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की जात पे कुर्बान जाए, आपने फरमाया कि हमारा तो हक, हमारा काम ये है, हमने अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद के अंदर दावत इस्लामी के मदारिस और जामियात को कायम करना है। और हमारे शेख तरीकत का ये ऐलान है कि पाकिस्तान के एक एक गांव में दावत इस्लामी का मदरसतुल मदीना होगा और पाकिस्तान के एक एक शहर के अंदर जामियातुल मदीना होगा, जहां पर लोग इल्म दीन और दरसे निजामी की सादत हासिल करेंगे। तो वहां पर ये मीटिंग हुई कि हम आपने फरमाया कि मेरे दिल की तमन्ना है कि हमारे जाविया तरीकतुल मोहम्मदी हकीका के अंदर भी दावत इस्लामी का मदरसतुल मदीना कायम किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 2-2.5 माह के परासिस के बाद आज हमारे मदनी मरकज की तरफ से जाविया तरीकतुल मोहम्मदिया का मदरसा ओके हुआ। हमने यहाँ पर कारी साहब को बिठाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अभी 10 दिन हुए हैं, 25 बच्चे यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक रब के कलाम की तिलावत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारस के अंदर सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ाया जाता, बकायदा 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आधे घंटे का हमारा एक पीरियड होता है जिसके अंदर हम बच्चों को दीनी मालूमाती किताब पढ़ाते हैं। इस किताब का नाम है इस्लाम की बुनियादी बातें। यह भी दावत इस्लामी का एक शोबा अल मदीनातुल इल्मिया जो 100 से ज्यादा उलमा और मुफ्तियाने कराम के ऊपर मुश्तमिल है, जिनका काम यह है पुराने बुजुर्गों की अरबी कुतब का तर्जमा करके अवामुन नास के सामने पेश करना, ताकि पुराने बुजुर्गों की कुतब के उलूम से ये लोग बहरामंद हो और अपने दिलों की कदूरत को दूर करके नबी पाक के दीन के रास्ते पे चले।
تو المدینۃ العلمیہ کی طرف سے، ہماری مجلس المدرسۃ المدینہ کی طرف سے وہ 3 کتابیں ہمیں ملی ہیں۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ اول، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ سوم۔ جب کوئی بچہ ہمارے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں جو تجوید و قرات والا ہے۔ اس قاعدے کے ساتھ اس نے پہلی کتاب پڑھنی ہوتی ہے۔ جب اس کے بعد وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھتا ہے، ناظرے کے ساتھ اس نے دوسری کتاب پڑھنی ہے۔ جب اس نے تیسری کتاب شروع کرنی ہے تو اس نے قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ 400 سے زائد صفحات پر وہ کتاب اس نے پڑھنی ہے۔ اور الحمدللہ جو بچہ یہ 3 کتابیں پڑھ لیتا ہے نا، وہ ضروریات زندگی کے مسائل ازبر یاد کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مدرسۃ المدینہ آپ کا اپنا ہے، ہم سب نے مل کے اس کو آباد کر رہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ حقیقہ کے جتنے مہمان بیٹھے ہیں، چاڑا والا کے دیگر قرب و جوار اطراف سے جو مہمان تشریف لائے، آپ سب تعاون کریں۔ الحمدللہ عز و جل دین کے کام میں اللہ بڑی برکت ڈالتا ہے۔ جب ہم نے مدرسۃ المدینہ منڈیر میں شروع کیا تھا نا، یقین کریں اب 13 بچے تھے، لیکن آج وہی مدرسہ جو 3-4 سال کے بعد 150 سے زائد طلباء کرام وہاں پر دین اسلام کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ منڈیر کی ایک شاخ الزاویہ طریقۃ المحمدیہ کے اندر یہ قائم ہو چکی ہے۔ ہمارے قاری صاحب تشریف لائیں، قاری اسد صاحب آگے تشریف لائیں، ہمارے قاری صاحب ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کریں۔ الحمدللہ 2011 کے اندر مدنی مرکز کی طرف سے ان کا تدریس کا اجارہ ہوا تھا، یہ مدرس بنے تھے۔ پہلا سال ان کا جو تھا نا وہ 2011 تھا۔ ساتھ آپ کے بالکل قریب گاؤں بجیران ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ پہلے یہ دور دراز علاقوں میں پڑھاتے رہے، لیکن پھر ہمارے منڈیر میں تعداد بنی، ہمیں استاد صاحب کی حاجت تھی، تو پھر ہم نے مدنی مرکز سے اپنے ذمہ داران سے بات کر کے ان کو اپنے پاس بلایا۔ آج 2021 سے 10 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی کلاس حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ جاری رکھی ہے۔ تو یہ پرانے ہمارے پاس استاد تھے، الحمدللہ ہم نے یہاں پر بھیجا اور الحمدللہ 25 بچے آج تک موجود ہیں۔ اور ایک آپ سب کے لیے خوشی کی بات کہ ہمارے مدنی مرکز کا یہ بھی قانون ہے کہ اگر ایک مدرسہ ہے نا، وہاں پر اگر بچے 35 سے 40 کے قریب ہو جائیں تو وہاں پر مدنی مرکز کی طرف سے دوسرے استاد صاحب کا انتخاب ہو جاتا ہے، پھر 2 استاد صاحب جو مل کے قرآن کریم کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت احمد دباغ قادری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ جن کی کوششوں سے الحمدللہ عز و جل یہاں پر دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان مدرسۃ المدینہ قائم ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے دین کا علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس مدرسۃ المدینہ کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے آپ مہمان دور و نزدیک سے چل کر اس افتتاحی تقریب میں حاضر ہوئے، میں آپ سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جو مدرسۃ المدینہ یہاں پر طلباء کے لیے شروع کیا گیا ہے، جس میں حفظ اور ناظرہ کی کلاس، جیسے کہ مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کو اس کا تعارف بھی کروایا کہ 25 بچے اب تک جو ہیں وہ داخلہ لے چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ بلا تاخیر حضرت صاحب کا بیان جو ہے وہ شروع ہوگا۔ آپ تمام احباب جو ہیں وہ متوجہ رہیں اور